Hi guys, I'm super excited to announce that Expats Hub has collaborated with Bonsai Solutions to bring a series of episodes for you guys. Bringing you the first episode with none other than Monica Singalji, who's the founder of Hariom Smiles. Namaste, Monica ji. Namaste. Welcome to Dubai. Thank you, Shukrana. Love you. Love you too. Love you loads, loads, loads. Actually, I'm so excited. I can't believe that I'm actually sitting here next to you and talking about your visit to Dubai. We Dubai people are very lucky. I know that. How do you feel? How did you like this area? See, I think that is vice versa. Even I am very, very happy to come to Dubai. इतना beautiful है Dubai, and the kind of energy people have here is just wonderful. That's so lovely to hear. One thing that I wanted to ask you, Monica ji, when did this journey of yours start? We've heard, we've seen you healing, we see you talking to lakhs of people every day. So many people have been healed. But honestly speaking, when did this journey start for you? When did that spark come to you? So, this was way back in 2012. My father was quite unwell, and he had undergone a heart surgery, aorta replacement, और सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई बट वो ठीक नहीं हो पा रहे थे. सो मेडिकल साइंस एंड मेडिकल डॉक्टर्स इन दिल्ली, बिकॉज आई बिलोंग टू दिल्ली में मेदांता में सर्जरी हुई. बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर वर्किंग, पर वो ठीक नहीं हो पा रहे थे. देयर वर लॉट्स ऑफ हेलुसिनेशंस आफ्टर द सर्जरी, और मेडिकल साइंस कोई जवाब नहीं दे पा रही थी. सो दैट इज द टाइम वेयर आई कनेक्टेड. जब आप पेन में होते हो ना और आपको कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो देयर इज वन वॉइस फ्रॉम योर इनर सेल्फ. व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग, कि आप भगवान को ढूंढने लगते हो, आपको एक ऐसी चीज़ को ढूंढने लगते हो, बिकॉज सब जगह से ना सुनने को मिलती है. सो सम पर्सन एज अ गॉड केम टू मी एंड गिव मी एन आइडिया कि हमारे अंदर भी बहुत बड़ी हीलिंग पावर्स होती हैं और हम उनको अनरावल कर सकते हैं. दैट इज़ अ टाइम वेयर आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग. और जब मैंने मेडिटेशन करा तो इतनी अंदर अपने आप में पावर्स पता लगी. आई वॉज जस्ट शॉक्ड टू नो दैट वी हैव इन बिग यूनिवर्स इनसाइड अस, और वो ग्रेजुअली बढ़ता चला गया. सो नॉट ओनली माई फादर गॉट हील्ड, इनफैक्ट कितने लोग जो कनेक्ट होते चले गए, और अपने आप ही आई डोंट नो हाउ स्माइल्स केम इनटू बीइंग, बिकॉज people around me came to me and they started telling me कि आप whatever you are doing, we can feel some kind of different energy in you. हमें भी वो energy को सीखना है. And so smile took birth. And How long was this journey when you initially realized that there is a spark within me which can be turned into a healing? so I think for 4 or 5 years I did my own sadhana, जी. and then smiles came into me. So did you have a master? Did you have a guru to guide you? See, गुरु शब्द अपने आप में ही बताता है. गु मतलब अंधेरा एंड रू मतलब रोशनी. सो जनरली हमें लगता है कि कोई बाहर से कोई गुरु है जो हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे, कोई बहुत बड़ी पावर दे देंगे, बट गुरु हम सबके भीतर है. सो हम स्माइल्स जब शुरू करते हैं कोई भी सेशन, तो सबसे पहली चीज़ बोलते हैं कि सबके अंदर बैठे गुरु को हम प्रणाम करें. सो एवरीबडी, you can learn from everybody, from even 1-year-old child can learn. So many people, awakened people came to my life. Like I learned my meditation from Jharna ji, I got Brahm Gyan from Sant Bhupesh ji, who's a follower of Dada Lakshmi Bhagwan. So ये लोग सब ऐसे लोग थे, लेकिन बचपन से लेकर आज तक जो भी टीचर मुझे मिले, जो भी गुरु मुझे मिले, उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया. और वो जब मैं मेडिटेशन करने लगी, साधना करने लगी, तो सबकी बात मुझे और क्लियरली समझ में आने लगी. आई थिंक वो बचपन से तब तक तो नहीं समझ में आई थी. वो बेस था, बट उसको मैं डिकोड नहीं कर पा रही थी. सो वो सारा कोड में था, बट जैसे जैसे मैं अंदर गई तो जितने भी सवाल मुझे लगता था कि कहीं से मिलेंगे, पता लगा हमारे ही अंदर उनके आंसर्स पड़े हैं. एंड द इनसाइड जर्नी इज सो ब्यूटीफुल. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि gurus and masters, they will come and each one will take you from one step to the higher level. Yes. And when is that point when the explosion comes into you, when you realize कि aham brahmasmi? या सो क्या होता है कि ये जो नाम है ना, ये नाम हमें बहुत भटकाता है. लाइक हम हमेशा अपने नाम से कनेक्टेड रहते हैं. जैसे आई एम मोनिका, तो
ये नाम बहुत भूखा रहता है हमेशा कि सब इसकी तारीफ करें, सब इसको प्यार दें, सब इसको हेल्प करें, सब इसको कुछ। तो हम एज अ मोनिका बनकर जब कुछ भी करते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाला या तो उसे अप्रिशिएट करे या हमने जो सपना देखा उस काम को करते हुए वो पूरा हो। सो वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ बेगरी। हमें किसी से ना किसी को कुछ चाहिए। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हम अपनी पावर को लिमिटाइज कर लेते हैं। स्माइल्स में हम बोलते हैं सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड, और बोलते हैं कि इच्छा है ऐसी बली जो रुलाती है इंसान को गली गली और दिल में हर वक्त मचाती है खलबली। नहीं तो आप देखो ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है, कौन चला रहा है इस अर्थ को 1 लाख किलोमीटर की स्पीड पर? देयर इज नो रोड, कोई तागा नहीं है, कोई पिलर नहीं है, सारा सोलर सिस्टम अपने आप चल रहा है। एंड वी आर अवेक, वी डू आवर वर्क, वी स्लीप। हम सो जाते हैं तब भी हमारे बॉडी का मैकेनिज्म अपने आप अंदर काम कर रहा है। ये तो बहुत ही प्यारा ज्ञान जो आपने सिखाया। अब आज की दुनिया में there are various spiritual leaders who have come and talked about this, but what we have realized, आपको सुनिए, आज पूरा दिन हम मोनिका जी के साथ थे, कि all the spiritual principles and all the rituals that have been done since ages have been taught to us very simply. So is this what Smiles is all about? या सी स्माइल बोलता है कि अगर मैजिक आपको अपने अंदर नहीं मिला ना तो कहीं नहीं मिलेगा। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। तो हम जीवन को जीते हैं 1 साल के हिसाब से। हम वी ऑलवेज से ये आई एम 20 years old और 30 years old, या एक दिन में 24 hours है, जबकि हम बोलते हैं वी हैव टू सी द पल मीन्स द सेकेंड। एवरी डे हैज 86,400 seconds इन अ डे टू लिव। तो आप अपने आप को इतना एक्सपैंड कर लेते हो। आप एक हर जगह बिजी है। आप एक छोटे से बच्चे से को मिलो ना, वो भी ओवर बिजी है, उसकी इतनी सारी कोचिंग है, इतनी सारी क्लासेस है। दे आर नॉट एक्चुअली, कोई बच्चा खुल के तो खेल ही नहीं रहा है, वो स्कूल में एडमिशन लेते ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ गया। हाँ जी। सो एवरीबडी इज रनिंग डायरेक्शनलेस, रनिंग फॉर बॉडी। किसी को नहीं पता कहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि वो दौड़ खत्म ही नहीं हो रही है। और जितनी चीजें, जैसे आप देखेंगे ना दुबई को, तो ऐसा लगेगा यहाँ पर कि देयर इज सो मच ऑफ वेल्थ, पीपल आर सो वेल ऑफ, इतनी बढ़िया बढ़िया कार्स हैं, इतना सब कुछ है। लेकिन यू नो व्हेन आई सी देयर एनर्जीज, तो कई जगह बहुत डिप्लीटेड है। सो ऐसा लगता है जैसे बाहर तो बहुत रोशनी है, बट व्हाट अबाउट द लाइट इनसाइड? Somewhere we find that missing. It's not only about Dubai, it's about everywhere in the world. Everybody is running, but वो पीस नहीं मिल रही है। हर जने की लाइफ पीसेस मीन्स PIECES इसमें भाग रही है। So, मोनिका जी, हमें एक चीज़ आप ऐसा बताइए which is so different from everything that we are seeing today in the world, जो एक छोटा सा 10 साल का बच्चा भी अगर एक सिंपल सेंटेंस में समझ जाए कि ये जो वो कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, एवरीथिंग एल्स विच ही इज अंडरगोइंग, और एक ऑफिस गोअर है जो पूरा टाइम अपने सैलरीज एंड ऑल दोस निटी-ग्रिटीज में पड़ा रहता है, या एक हाउसवाइफ जो पूरे दिन खाना बनाती है, वेट करती है कि उसके हस्बैंड आए एंड देन ही इज हैप्पी विद द फूड दैट इज गिवन। ये सब बाहरी चीज़ें हैं, श्योर, बट स्माइल्स क्या उनको देना चाहती है जो सबसे अलग है और जो उनको एकदम टर्न अराउंड कर दे? आज मैंने देखा है, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। देखिए, एक चीज़ है कि आज जैसे भी आपने एग्जाम्पल दिया बच्चों का, बड़ों का, एनी एज ग्रुप, लाइफ इज टू फ्लो। हर जना लाइफ में सेटल होना चाहता है, सेटल होने के लिए बनी नहीं है वो। लाइफ को हर वक्त सेलिब्रेट करना है। वी हैव टू बी इन अ सेलिब्रेशन मोड, वेदर इट इज वर्किंग, वेदर इट इज फेसिंग सम चैलेंज, दैट हैज टू बी अ सेलिब्रेशन एज वेल। जो स्माइल्स के लोग सब प्रूव कर रहे हैं कि वो किसी भी बात पे ये नहीं बोलते व्हाई डिड दिस हैपन इन लाइफ, दे से वाओ, यू नो, वाओ एन एक्सपीरियंस केम टू मी। व्हाई? क्योंकि अगर किसी को भी, आज इतनी टॉल बिल्डिंग्स है ना दुबई में, आप किसी को बोलिए वो 100th फ्लोर पे पैदल जाए, स्टेयर्स चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? और अगर वो स्टेयर्स एक बार ही, पहली बात तो चढ़ना ही मुश्किल है, इतनी एनर्जी नहीं है, बट अगर चढ़कर उतरना पड़े, दोबारा चढ़ना पड़े, तो नोबडी कैन डू इट। बट इफ यू हैव टू गो बाय लिफ्ट, फिर आप उसको 100 बार ही उतारिए, चढ़ाइए। सो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्माइल्स है, ये आपको ये इलेक्ट्रिक करंट देती है, ये आपको एक लिफ्ट देती है लाइफ में, कि आपको कोई भी काम में थकान नहीं आएगी, बिकॉज यू विल एम्पावर ऑल द पावर फ्रॉम द यूनिवर्स विच इज विद इन यू, बट आपको उसका पासवर्ड नहीं पता है। अब मेरे पास कितना भी बढ़िया फोन हो, लेकिन अगर मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता तो मैं उस गैजेट को यूज नहीं कर सकती। तो इस गैजेट का हम पासवर्ड दिलाते हैं। इसी तरीके से आपने ऑलमोस्ट 70,000 पीपल को हील किया ड्यूरिंग कोविड। या
What was the magic there? मैजिक ये था कि सब लोग कोरोना से नहीं मर रहे थे, कोरोना के नाम के डर से मर रहे थे. एवरीबडी वॉज इन सो मच ऑफ फियर अबाउट कोरोना. और जैसे ही हम डरते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बंद हो जाता है. आप देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर पूरी जिंदगी मेंटेन रहता है. कोई तो करंट है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, कोई तो करंट है जो हमारे सारे ऑर्गन्स, हार्ट भी पंप कर रहा है, किडनी अपना काम करे, लिवर, वो करंट. तो जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आता है वो करंट डिफ्यूज हो जाता है. नहीं तो देखिए आज के दिन दुनिया जितना बेस्ट खाना खा रही है, इतना तो पहले कभी था ही नहीं. सही बात. पर बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं. विटामिन डी, विटामिन B12 15 साल पहले कोई सुनता नहीं था. और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग बता दीजिए, जैसे काऊ बोलती है कि मुझे तो विटामिन B12 की जरूरत है, या कोई भी एनिमल, इट इज ओनली ह्यूमन बीइंग. क्योंकि हमारे को थॉट्स की जो पावर दी है, वो थॉट्स आर नॉट इन कंट्रोल, थॉट्स आर जस्ट रनिंग. जैसे आज एक एग्जाम्पल हमने देखा, देयर वाज अ लेडी हु केम अप टू अस एंड सेड कि उसको इतना पेन था कि उसके हाथ खुल नहीं रहे थे. एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन शी वाज एज लाइट एज अ फेदर. उनके हाथ एक खुल गई, एवरीथिंग वाज लाइक शी वाज स्माइलिंग. आई सॉ हर इनिशियली व्हेन शी केम इन, और इतनी डिप्रेस थी. एग्जैक्टली क्या केमिस्ट्री अंदर चेंज हो गई which you know this kind of a miracle took place? छोटी सी चीज कराई थी उनको. हाँ जी. देखिए हम एक बच्चा भी काम करता है ना, तो हम उसको बोलते हैं वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बोलते हैं ना, और वो उससे स्माइल करता है. कोई भी लेडी, कोई भी जेंट्स किसी भी एज में काम करता है, उसको और कुछ चाहिए होना चाहिए, बट अप्रिसिएशन चाहिए होती है. अच्छा. एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है ना. लेकिन हमने, हमारे ऑर्गन्स पूरे दिन इतना काम करते हैं, जब से हम पैदा हुए तब से बॉडी काम करती है, डे एंड नाइट. ना इसकी संडे को हॉलीडे है, ना इंडिपेंडेंस डे को हॉलीडे है, ना इसकी कोई समर हॉलीडे है, ना विंटर हॉलीडे है. सारे ऑर्गन्स काम करते हैं. तो हमने उन्हें सिर्फ ये बताया कि ये जो इतने सालों से काम कर रहे थे, थक गए, आपने कभी इनको थैंक यू नहीं बोला. तो उन्होंने जब अपने हैंड्स को, लेग्स को शुक्राना बोला और बोला अरे आई लव यू, यू आर द बेस्ट, तुम तो इतने सालों से मुझे हेल्प कर रही हो, उसी टाइम वो फिंगर स्माइल करने लग गई और वो पेन चला गया. सो दे वर बेसिकली रिमाइंडिंग दैट पर्सन कि वी हैव बीन वर्किंग. पर आपने कभी समझा ही नहीं कि इतनी कीमती चीज मिली हुई है. सी आज के दिन लोगों को लगता है 2 बंगलो हैं तो दे आर वेरी हैप्पी, गाड़ियां हैं तो बड़ा हैप्पी, बैंक बैलेंस है तो बड़े हैप्पी, फिर लाइफ बड़ी सेट हो जाएगी. पर लाइफ सेट कहाँ हुई? लोगों की टेंशन्स, डिप्रेशंस तो बल्कि कम हो जाने चाहिए थे. पहले तो इतनी सब फैसिलिटीज नहीं. सो पोस्ट कोविड इस दुनिया को स्माइल्स क्या देना चाहता है? सच पूछें तो स्माइल्स जिंदगी जीना सिखाना चाहता है. क्या बात. क्योंकि जिंदगी हमें जी के जा रही है, हम नहीं जिंदगी को जी रहे हैं. सही है. जिंदगी इज ईटिंग अस अप इन बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो बाहर से आएगी. मेरे बच्चे के एग्जाम अच्छे हो जाएंगे, उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, देन आई विल बी हैप्पी. उसकी अच्छी शादी हो जाएगी, देन आई विल बी हैप्पी. मेरा बहुत सा बड़ा सा नाम हो जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी. ऐसा करते करते में लाइफ एक दिन आकर गाना गाती है, अच्छा तो हम चलते हैं, और हमें वो हैप्पीनेस कहीं मिलती ही नहीं है, जबकि वो हमारे भीतर ही थी, हमारे भीतर ही थी. आई एम नॉट डिनाइंग दैट अ पर्सन शुड नॉट वर्क. अरे काम करो ना, जितने अवतार भी उन्होंने भी काम किया. सो एवरी पर्सन हैज टेकन बर्थ टू डू सम वर्क. पर हम काम नहीं कर रहे हैं. हम तो एक ऐसा नाम चाह रहे हैं जो मिलने वाला है नहीं. सही है. सो कर क्या रहा है? भगवान सब कुछ कर रहा है. वो जिसको भी हमने उसका नाम अलग अलग बना दिया, भगवान को भी हमने डिवाइड कर दिया. दैट सुपर पावर, दैट इज अ यूनिवर्सल पावर. उसको आप चाहे अल्लाह बोलिए, चाहे आप उसको जीसस बोलिए, चाहे आप उसको भगवान, कोई भी बोल लीजिए. वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. हम सिर्फ 5 एलिमेंट्स को चार्ज करते हैं. बॉडी में वो जो डिस-ईज है, देयर इज नथिंग एज डिजीज. डिजीज ओनली मीन्स कि आपकी बॉडी कंफर्ट में नहीं है, डिस-ईज में है. नहीं तो आप देखिए आज दुनिया में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, हम उनको उनका भी नहीं काम करने दे रहे. उनको हमने डॉक्टर्स की जगह डिजीज मैनेजर्स बना दिया है. हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जीवन भर दवाई खाइए. बीपी की प्रॉब्लम हो गई, जीवन भर दवाई खाइए. शुगर की प्रॉब्लम हो गई, जीवन. तो वो हील कहाँ कर रहे हैं? So you're talking about a holistic solution which talks not only of the mind and for the body. या So for the body, what does smile do? बॉडी के लिए स्माइल करती है कि सबसे पहले तो उठते इसको स्माइल दे दोगे जी. और रात को सोने से पहले इसको थैंक यू बोलो. और एक जो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है ना, वो तभी कंप्लीट होता है जब वो सोशली, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हो. स्पिरिचुअल को सबने सुपरस्टिशन समझ लिया. दिस इज अ वेरी बिग साइंस. So why is spirituality always connected to religion? How do we differentiate that? Because then it becomes into different parameters. या So what does smile say about this?
स्माइल कहता है भाई ये जो आपकी सोल है जो लगातार करंट प्रोड्यूस कर रही है, जो आपकी बॉडी को चला रही है, बिकॉज यू नो व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज अलाइव, उसके सारे ऑर्गन्स उसके पास होते हैं, सब कुछ वो कर रहा होता है। हम बोलते हैं आँख से दिख रहा है, राइट? जब एक इंसान की डेथ हो जाती है आंखें तो उसके पास होती हैं, पर उन आंखों को तो नहीं दिखता। उन्हीं आंखों को आप उस ह्यूमन बॉडी से निकाल दीजिए और किसी उसको दे दीजिए जिसकी ब्रेथ चल रही है, फिर से वो आंखें तो ब्रेथ दिखा रही थी या आंखें देख रही थी। सो हम उस ब्रेथ से कनेक्शन कराते हैं विच इज हैज अ सुपर पावर। वो ब्रेथ जो सोते टाइम भी हमारी बॉडी खुद लेती है और छोड़ती है। हमें जब बोला जाता है डीप ब्रीथ करो तो हमें उतना भी एफर्ट पड़ता है। सो दैट इज अ वेरी बिग एनर्जी विच इज कंटिन्यूसली बीइंग गिवन बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत महान है, वो इंसान को सारे एलिमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ना वो सूरज की कोई प्राइस रखा हुआ, ना वाटर का प्राइस रखा हुआ, ना सांसों का प्राइस रखा हुआ। ह्यूमन बीइंग जिस चीज को अपना बनाता है वो पानी भी बेचना शुरू कर देता है, वो बिजली भी बेचना शुरू कर देता है, वो हर चीज को मोल लगा लेता है और वो अपने आप को लिमिटाइज कर लेता है। भगवान ने इंसान को इस पूरी धरती का राजा बनाकर भेजा था। उसने कुछ नहीं बोला भगवान नहीं मेरा है, बोले सब कुछ तुम्हारा है, इसको यूज करो। पर यूज तो करें, हम तो इकट्ठा करने में लग गए। अब बहुत सारा सामान लेकर आप चलिए तो आप थक जाएंगे ना, आप एंजॉय नहीं कर रहे। और दूसरी चीज स्पिरिचुअलिटी को सबने ड्राइनेस में ले लिया। स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ छोड़ दो, घर छोड़ दो, पैसे छोड़ दो। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल्स बहुत ही कुछ अलग बताता है इस बारे में। हाँ, तो हम बोलते हैं छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ एंजॉय करो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी पहनो, लेकिन ये याद रखो सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, आपका कुछ नहीं है। सो यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, बिकॉज जैसे ही आप कुछ चीज लीव करते हो तो उसकी ईगो आपको और ज्यादा स्टबन बना देती है जी। बिकॉज आपको लगता है बाकी सब लोग लो हैं, वो तो कुछ दे नहीं रहे, आप एक महावीर दानी हो, आप सबको हेल्प कर रहे हो। यू हैव टू नो दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज बीइंग गिवन बाय गॉड। गॉड को आप अलग अलग कोई भी नाम दे दो, और सब कुछ यहीं रह जाना है, आपको थोड़ा टाइम यूज करने के लिए मिला है। और आपकी लाइफ कितनी है? 50 से 100 साल से 150 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, पर पृथ्वी अरबों खरबों साल से चल रही है। वी आर नॉट इवन अ स्पेक ऑफ अ डस्ट। लेकिन अपनी पावर को जान लेंगे तो पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। वी आर द कॉस्मोस, और स्माइल उसी पावर से सबको हील कर रहा है। What a profound thought. So friends, this is the first of the series of talks that we are going to have with Monica ji. इतने ही 10 मिनट में उन्होंने इतना ज्ञान दे दिया है कि I think it will take us maybe another week to digest it. So let's digest the gems of wisdom that she has given today and hope that we see her soon, very, very soon. I pray for everybody in Dubai and for all the people on this globe कि मुझे लगता है किसी को भी कोई डिस्कम्फर्ट ना हो लाइफ में। हम सब उस यूनिवर्स के बच्चे हैं जिसने सब कुछ एम्पल दिया है। वी आर सपोज टू हैव एन अबंडेंट ऑफ लाइफ। तो किसी को दर्द ना हो, किसी को कोई रोग ना हो, किसी को हार्ट का पेन ना हो, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड। सी हम अपने बच्चों को वसीयत में क्या देख के जा रहे हैं? बहुत सारी बीमारियाँ, डिसईज, डिस्कम्फर्ट। सो वो सब हमें नहीं देना है, उन्हें पावर देनी है, एम्पावर करना है कि लाइफ में फेलियर एंड सक्सेस आर वन थिंग। फेलियर से हम सीखते हैं और सक्सेस में हमें ईगो नहीं करनी है। वी हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ शुक्राना। सो शुक्राना टू ऑल, लव टू ऑल, एंड थैंक यू फॉर all these questions and this welcome. Love you. We are blessed. Thank you so much. Thank you. So guys, that was Monica Singhal-ji, the founder of Hari Om Smiles. And as they say about the word smile, See magic in life every second.